Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are starting this morning with the good news. Now you are eagerly awaiting for RBI Assistant, RBI Grade A and RBI Grade B notification. So what is the development about these three notifications that we will discuss in this video? Watch this video fully to understand the details, the minor details that I have discussed in this video. Now the first thing is what has happened in last few days as regard to these notifications. On 9th of April 2025, the much awaited wage increase has happened in RBI. So the unions and the management has agreed on certain terms, and according to that, the across the scales salaries are revised. So this was one pending issue that was making delay in release of notification, because in along with wage revision there was a very big issue involving RBI assistant was stuck. Management wanted to increase the eligibility criteria of a RBI assistant to appear for grade A to 10 years from previous 3 years. And the unions were not agreeable to it because that will hamper the career growth of RBI assistant, because many people joined as RBI assistant keeping in view that after 3 years they will become eligible and they will move higher in the cadre, and they even left some better opportunities that was in hand only with the idea that in coming years they may be much better than if we go for that position. But suddenly this time bomb has shattered their dream, and the condition of 10 years was very harsh condition. So stalemate was going on, and ultimately an agreement is reached that now RBI assistant will become eligible for appearing in grade A examination after 5 years of service. Eligible for grade A does not mean he will automatically become grade A. He has to go through a rigorous selection process where he or she has to pass online examination as well as interview. But along with this, management is able to get away with a very big thing from and snatch very big thing from existing assistants. That is direct recruitment for grade A. And if direct recruitment of grade A happens, naturally the number of vacancies available to existing RBI assistant will come down to that extent. So that will hamper the career growth of RBI assistant in coming years. But anyhow, a middle path was agreed upon, and now RBI can recruit grade A officers directly. Earlier years, they were used to take grade A and grade B when we were competing for the competition in early 80s. Grade A, grade B, both notifications were coming from RBI. But for so many years now, they were only taking grade B, and all grade A positions were filled by internal promotions. So RBI assistants were having an advantage that they can move to grade A. Now they are at disadvantage vis-a-vis their counterparts in other banking industry. But anyhow, now what is the position? The position is DAX are cleared for assistant grade, DAX are cleared for grade A, and DAX are cleared for grade B. But there is another rider. Now if we look at their internal communication where they have calculated the staff strength, as per that calculation that is discussed with me by some of their employees, those are working at senior levels, that from grade B onwards they have adequate staffing. So they may require very less grade B or even no grade B at present. But there are vacancies in grade A, and there may be vacancies in assistant, because they are not aware how many vacancies are there in assistant.
So now we can expect notification for all the three. One is RBI assistant, because normally RBI assistant notification comes on alternate years. So last year there was no notification. So this year we can expect this notification. This is one. Second, we can expect grade A notification, because now RBI management has mandate to take direct grade A. And there may be grade B notification with very less vacancies, because RBI may not like to discontinue the practice of taking grade B every year. So they may come out with notification, but with very, very less vacancies. So for the candidates, the major focus will be on assistant and grade A. For very few candidates can aspire to become grade B. So next question comes, when we can expect this notification? And since now things are clear and now process of identification of vacancies and notification modalities will start, so we can expect this notification any time from now onwards till September 2025. That is my estimate. Actual dates are still not known, because this is very early stage. Only thing is settlement is reached. Now the real process will start. So the process may take 1 month, 2 months, 3 months. You can't foresee. So we can be hopeful that by September we may see all the 3 notifications, or at least 2 notifications out of these 3, that is assistant and grade A, and maybe we may see the grade B also. So as a candidate you can start your preparation. As a candidate you can start your preparation, because after notification you will get very little time. But news is positive that now the impediments are over. The only thing is the time that will be taken in the process, that will be there. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. तो आज सुबह सुबह हम एक अच्छी खबर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड ई और ग्रेड ए और ग्रेड बी नोटिफिकेशंस के लिए. इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो गई है पिछले दिनों में. 9 अप्रैल को आरबीआई के अंदर जो वेज इंक्रीज होना था वो सेटलमेंट हो गई है, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ने कुछ अपनी शर्तें भी मनवा ली है, और इसके होते हुए अब अगला प्रोसेस रिक्रूटमेंट का जो शुरू हो सकता है. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि क्या क्या इम्पेडिमेंट्स थी. इंक्रीज हो गया असिस्टेंट की सैलरी में भी, ग्रेड ए में भी, ग्रेड बी में भी, और बाकी सब स्केल्स में भी, और उससे लोअर स्केल्स में भी. मगर एक इम्पेडिमेंट जो आ रहा था वो था असिस्टेंट से ग्रेड ए की प्रमोशन. जब जो एग्जिस्टिंग बैचेज हैं असिस्टेंट के, जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि 3 साल के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा ग्रेड ए के लिए, और मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू देके ग्रेड ए बन जाऊंगा. पर एकदम उनके सपनों पे बमशेल डल गया जब मैनेजमेंट ने कहा कि ये एलिजिबिलिटी हम बढ़ाकर 3 साल से 10 साल कर रहे हैं. 10 साल का मतलब ये है कि जो लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी छोड़ के असिस्टेंट गए थे उनको गहरा धक्का लगा, क्योंकि अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी पे चले जाते तो 10 साल में तो वो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे और यहाँ पर असिस्टेंट ही रह जाएंगे. तो इसलिए एक स्टेलमेंट हो गया मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच कि आप ऐसे 3 से 10 साल करेंगे तो हमारे तो असिस्टेंट आगे प्रमोट ही नहीं हो पाएंगे. 10 साल तो उनके असिस्टेंट में गुजर जाएंगे, और 10 साल बाद तो वो एलिजिबल होंगे, तो कैरियर के एंड तक वो कहाँ पहुँचेंगे, कहीं भी नहीं. तो इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस होने के बाद अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने गिव एंड टेक पॉलिसी में कुछ चीज़ें असिस्टेंट से स्नैच कर ली और कुछ उनको रिलैक्सेशन दे दिया. क्या दे दिया कि इंस्टेड ऑफ 10 years नाउ दे विल बी एलिजिबल आफ्टर 5 years. अब वो 10 साल की बजाय 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे, मगर एलिजिबल होंगे, प्रमोट नहीं होंगे. ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जो उनके प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी थी उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया. 5 साल बाद वो ऑनलाइन एग्जाम में बैठ पाएंगे, और इंटरव्यू देने के बाद डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज वो आगे बढ़ेंगे. मगर इसके बदले उन्होंने क्या लिया कि अभी ग्रेड ए के अंदर जो भी प्रमोशंस के जरिए ही वो ग्रेड ए की वैकेंसीज को फिल कर रहे थे. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट काफ़ी वर्षों से नहीं हुआ. जब हम लोग एक कंपटीशन देते थे 80s के अंदर, उस समय ग्रेड ए नोटिफिकेशन भी आता था, बी भी आता था.
पर आप पिछले कई सालों से हमने खाली ग्रेड बी नोटिफिकेशन देखा है, ग्रेड ए नहीं देखा है। रिसेंट 10-12 साल में तो नहीं देखा, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस चैनल के ऊपर। 2012 से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं देखा 2012 ऑनवर्ड्स। उससे पहले कभी आया हो तो मुझे अब इतना उसका नहीं पता है। तो अब ग्रेड ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। जब ग्रेड ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी तो जो ये वैकेंसी पहले असिस्टेंट को मिलती थी नेचुरली डायरेक्ट लोगों से भर जाएंगी, तो असिस्टेंट का प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा। तो हालांकि उन्होंने 10 साल से 5 साल कर दिया, मगर जो नंबर ऑफ सीट अवेलेबल होंगी उनको वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली कट हो जाएंगी, क्योंकि रेशो नहीं बताया किस रेशो में डायरेक्ट लेंगे और किस रेशो में असिस्टेंट से ऑफिसर बनाएंगे। ठीक है, अभी उसकी हो सकता है डिटेल आ जाए आने वाले दिनों में। मगर एज ए कैंडिडेट आपके लिए क्या स्टोर में है, क्योंकि अब ये सेटलमेंट जो हो गई और इम्पेडिमेंट हट गया, तो अब आरबीआई क्या करेगा? अब आरबीआई असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट करेगा, क्योंकि चीज़ें क्लियर हैं कि जो असिस्टेंट आएगा कितने साल बाद अफसर के लिए एलिजिबल होगा, कोई उसको कन्फ्यूज़न नहीं है। और असिस्टेंट की वैकेंसीज आइडेंटिफाई होके आगे का प्रोसेस शुरू हो सकता है। कितने एग्जिस्टिंग असिस्टेंट प्रमोट हो जाएंगे और कितने उनको चाहिएंगे उसकी रिप्लेसमेंट में, और कितनी रिटायरमेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेड ए के लिए, क्योंकि अब उनको इम्पेडिमेंट हट गई, तो वो ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कितनी वैकेंसीज आएंगी ये देखने वाली बात है। इसी तरीके से ग्रेड बी की भी रिक्रूटमेंट हो सकती है, क्योंकि वो हर साल होती है। मगर अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो इंटरनल शीट स्टाफ स्ट्रेंथ और वर्किंग स्टाफ की बनाई गई है आरबीआई के अंदर, उसके अनुसार ग्रेड बी, सी, डी, ई, एफ जो भी उनके स्केल्स हैं, ग्रेड्स हैं, उसमें जितना स्टाफ चाहिए और जितना वर्क कर रहा है वो सफिशेंट है। अगर कमी है तो वो है ग्रेड ए अफसरों की। तो इसलिए जो वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी वो ग्रेड ए में होंगी, और ग्रेड बी अगर नोटिफिकेशन आता है, अगेन आता है या नहीं आता इस पे क्वेश्चन मार्क है, पर मेरा मानना यह है कि ग्रेड बी की वो प्रैक्टिस नहीं बंद करेंगे, ग्रेड बी निकालेंगे, मगर न्यूनतम वैकेंसीज के साथ निकालेंगे। हो सकता है रिसेंट ईयर्स की ये सबसे कम वैकेंसीज भी हों, या जैसे लास्ट ईयर वैकेंसीज थी उसी रेंज में हो। अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ग्रेड ए की वैकेंसीज आएंगी, किस रेंज में आएंगी ये नोटिफिकेशन आने के बाद होगा, क्योंकि ये रेशो जब तय होगा कि असिस्टेंट से कितने प्रमोट होंगे ग्रेड ए और कितने डायरेक्ट लिए जाएंगे, उसी रेशो के आधार पर ग्रेड ए की वैकेंसी डिसाइड होंगी। क्योंकि सारी की सारी ग्रेड ए वैकेंसीज तो डायरेक्ट नहीं आ सकती, कुछ तो वो रखेंगे प्रमोशन के लिए। जब एग्री कर लिया 5 साल वाले एलिजिबल हो जाएंगे, तो 5 साल वाले जब एलिजिबल होंगे तो कुछ पोस्टें उनको देनी पड़ेंगी और कुछ पोस्टें देनी पड़ेंगी डायरेक्ट के लिए। अब क्योंकि कुछ लोग प्रमोट होंगे और कुछ लोग रिटायर भी होंगे, तो इसलिए असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो ये तीनों नोटिफिकेशन अब आने वाले दिनों में आने चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि ये प्रोसेस होते 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 सितंबर तक हम इन नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। जल्दी भी आ सकते हैं और लगभग 4-5 महीने का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि सारी आइडेंटिफिकेशन करना, यूनियंस को लूप इन लेना, रेशोज निकालना, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो क्योंकि इस साल ये नई चीज़ें घटना घटी हैं, तो इसके अंदर जो बेंचमार्क बन जाएंगे वो आने वाले सालों में भी इस्तेमाल होंगे। तो इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, बट जल्दी भी आ सकता है। डिपेंड करता है कितनी एफिशिएंटली या कितनी क्विकनेस मैनेजमेंट को है इन सीटों को भरने की। तो मेरा कहना ये है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ग्रेड ए के एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा अभी नहीं पता है, मगर जो ग्रेड बी का पैटर्न है उसी के ऊपर आप तैयारी कर लें, क्योंकि जब ग्रेड ए आया करता था तो लगभग एग्जामिनेशन पैटर्न सिमिलर था दोनों का, ग्रेड ए और ग्रेड बी का। ठीक है, असिस्टेंट का पैटर्न आपको पता ही है, तो कोई उसमें मुझे चेंज होने की उम्मीद नहीं लग रही। तो ये आपके लिए अभी तक का अपडेट है। जैसे ही और सूचना मिलेगी, जैसे ही डेट्स डिसाइड होंगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आने की संभावना होगी, फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। मगर आज जो ये हमारी वीडियो है, इसमें डेफिनेटली हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। अभी तक हमारे पास शेकी इंफॉर्मेशन थी। गॉड ब्लेस यू ऑल।